So let's start with the revision. कि जहां तक आपके बोर्ड्स का सवाल है, गुड न्यूज इज दैट आपके बोर्ड्स में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है. दो एक्सरसाइज था पहले. इस नया जो सिलेबस में दो एक्सरसाइज था. एक था अपना इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, जो उन्होंने एक्चुअली इस साल के एग्जामिनेशन में निकाल दिया सिलेबस से. तो सिर्फ अभी एक ही एक्सरसाइज बचा और काफी चिंटू सा एक्सरसाइज है. सो कैन आई स्टार्ट? Yes, sir. Okay, so kids, basic fundamental theorem of integral calculus पता होना चाहिए. Integral a to b f of x dx. If you're integrating from a to b, तो f of x का normal integration करने का and then the upper limit minus the lower limit. हाँ क्या नहीं? Yes, sir. तो जहां तक indefinite definite का सवाल है, indefinite आना चाहिए. It is expected. तो वो comfortable हो जाएगा ये चैप्टर आपको. चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं. Chalo. Okay, so kids, let's go ahead. Exercise 4.2, 4.1 is not there in the syllabus of the new textbook. Let's start with this question. Okay, so kids, I have here integration of 0 to 1 x square minus 2 upon x square plus 1 dx. Of course, आपको यहाँ पर उसको इंटीग्रेट करना है. तो आई थिंक कैन एनीबॉडी सजेस्ट मी मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पर? So x square plus 1 minus. हाँ, एक्चुअली व्हाट आई शुड डू इज आई शुड ऐड 1 सो दैट आई सब्ट्रैक्ट 1. ऐसा क्यों किया मैंने? Why? Cancel हो जाएगा नीचे से. I can split my denominator here, right? I can just split it. तो इससे क्या होगा? यहाँ पर आएगा 1 और ये हो जाएगा 3 upon 1 plus x square. उल्टा लिख दिया कुछ नहीं. आई थिंक एवरीबडी शुड नो ये है बेसिकली 1. ओके, आई जस्ट राइट इट हियर ओनली. ओके, 1 dx फ्रॉम 0 to 1 और ये हो जाएगा 0 to 1 से 1 upon 1 plus x square dx. अब शायद मुझे बताने की जरूरत शायद नहीं पड़नी चाहिए, बिकॉज 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है, सबको पता ही है ना. Yes, sir. Yes, sir. Okay, और जहां तक 1 upon 1 plus x square. Anybody remembers? Tan inverse. It is tan inverse of x. Do you agree, kids? Yes, sir. Yes, sir. Okay, इसका इंटीग्रेशन है tan inverse of x और ये 0 to 1 पूरा है, तो मैं पूरा ही ले लेता हूँ 0 to 1. So when I put the upper limit, I get 1 minus 3 times of tan inverse of 1. And lower limit में put नहीं करने वाला कि कुछ फायदा नहीं है, तो 0 ही होने वाला. Yes, sir. So I get 1 minus tan inverse of 1 is nothing but pi by 4. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Your answer. Okay. Let's try with question number 7 then. Integration है 0 to pi by 4 है. 0 to pi by 4 sin 4x sin 3x. 0 to pi by 4 sin क्या था वो? sin 4x. 4x and sin 3x. Sin 4x sin 3x. Can anybody suggest me what I am going to do? तो ट्रिगो फॉर्मूला भी वीडियो. ट्रिगो का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए. कौन सा फॉर्मूला? 2 sin a sin b. क्या इसका आंसर कोई बताएगा? Sin a plus b. Sin a. Sorry, cos a minus b minus cos a plus. Cos of a minus b minus cos of a plus b. So whenever you come across a problem which is based on sin and cos या 2 sin या 2 cos, always think of this formula. तो पहले हमें multiply divide by 2 तो कर ही लेना चाहिए. I'm just multiplying and dividing by 2. And then I can pretty happily, I can just apply my formula which I already know. So it is nothing but I can decide as what? Cos of 4x minus 3x, that is x, minus cos of 4x plus 3x, that is 7x. Okay. Of course, I'm integrating. I'm going to integrate from 0 to pi by 4. Now, चलो कर लेते हैं. What is sin x का integration? Sin x. Minus. What is cos x का integration? Sin x. Minus sin x. Sin x. Sin x. Sin x. Sin x. That derivative थोड़ी है. Okay. And of course, cos 7x का integration will be sin 7x and divide the answer by coefficient of x, that is 7. From 0 to pi by 4. So now I can just put my upper limit. So I get sine of pi by 4 minus sine of 7 pi by 4 upon 7
minus lower limit will be 0 minus 0. Is it okay, kids? Yes, sir. Okay. Sine 45, of course, 1 by root 2. Well, 7 pi by 4. What is the answer of 7 pi by 4? minus 1 by minus 1 by root 2. या अगर किसी को याद नहीं तो बता देता हूँ कि देखो ये है 2 पाई बाय 4 हो जाएगा है ना 92 पाई बाय 4. दिस विल बी 4 पाई बाय 4. दिस विल बी 6 पाई बाय 4. तो आपका 7 पाई बाय 4 यहाँ पर कहीं पर है. डू यू एग्री? yes, sir. ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, राइट? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है और ये 45 डिग्री बचेगा यहाँ से. तो आपका साइन 45 का वैल्यू लिख दो. साइन 40 का वैल्यू होता है 1 बाय रूट 2, है ना किड्स? है ना? लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट है? विच क्वाड्रेंट इज Fourth दिस? quadrant, so negative Fourth में it will sign. be minus sign. Is it okay? Yes, sir. That's it. So it is end of the day. I have got here as this is 1 by root 2. This is plus 1 upon 7 root 2. So I can take an LCM. I get here 7 gets multiplied 7 plus 1 upon 7 root of 2. That is 8 upon 2 times of 7 root 2. So I get the answer as 4 upon 7 root 2. Is it okay, kids? Yes, sir. Yes, sir. तो indefinite आना चाहिए obviously. तो आपको indefinite आना ही चाहिए. उसके बिना तो फिर नहीं कर पाएंगे हम लोग. Okay? चलो. तो एक्चुअली जो इनिशियली जो सम्स है ना सारे बेस्ड ऑन नॉर्मली सारे बेस्ड ऑन आपके बेसिक इंडेफिनिट के सम्स ही है. खाली इंटीग्रेशन करने को आना चाहिए एंड देन डू द अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट. चलो अच्छी बात है. ऑफ कोर्स अभी हम 14 सम करने वाले हैं. ओके किड्स 14 सम है. दो फंक्शन जब मल्टीप्लिकेशन में होता है ओके तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं. हाँ कि नहीं? Yes, sir. वी ऑलवेज थिंक ऑफ द लिएट प्रिंसिपल. डू वी रिमेंबर? Yes, sir. Okay, x is the algebraic and this is inverse. तो inverse पहले आना चाहिए. हाँ कि नहीं? तो inverse आपका पहले आएगा और algebraic term बाद में आएगा. Is it okay? Yes, sir. So this will behave like your u and this will behave like your v and now we should apply our uv का integration. तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? u. यहाँ पर मुझे आंसर आएगा u integration of v minus okay, पहले का डेरिवेटिव व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x square. हाँ कि नहीं? Yes, sir. पहले का डेरिवेटिव. दूसरे का इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाएगा x square by 2 and then दोनों का साथ में इंटीग्रेशन. Is it okay? Yes, sir. So now I can put my upper limit. So when I put my upper limit, I get a tan inverse of 1 into 1 square by 2 minus, put the lower limit, tan inverse of 0 will be 0 only. Is it okay? Yes, sir. And I get here 0 to 1 x square upon 1 plus of x square. Is it okay? Yes, sir. Now tan inverse 1 pi by 4 होता है तो pi by 4 ये half है तो यहाँ पर pi by 8 आ जाएगा. Is it okay? Okay, अब ना आप लोग मुझे मेरी मदद करोगे. How to solve this integration? 1 plus x square minus 1 plus 1 minus. plus minus. Yeah, I think ये बहुत ही कॉमन स्टेप है. हमने बहुत बार किया है. You should add 1 so that you can subtract 1. Subtract 1. ओके ऐसी चीजें बहुत बार होती रहेगी एग्जाम में भी तो आपको थोड़ा कंफर्टेबल हो ही जाना चाहिए. सो आई गेट हियर किड्स पाई बाय 8 माइनस हाफ. लेट्स स्प्लिट द डिनोमिनेटर. आई गेट 1 माइनस 1 upon 1 plus x square. Is it okay? Yes, sir. So that's it. I think it's a basic So integration. can you please repeat the previous step? This one as you're saying? No, the pi by 8. Sorry. This one? Yes, sir. Tan inverse of 1 is pi by 4. So pi by 4, this is pi by 4. Yes, sir. So pi by 4 into half will be pi by 8. Oh, yes, sir. Yeah. Pakka na? Yeah. Sorry. I just multiplied it. Yeah. Yeah. I hope सबको ठीक है. ठीक है ना kids? Yes, sir. Yeah. 1 का इंटीग्रेशन आपका x होता है और 1 upon 1 plus x square का इंटीग्रेशन tan inverse of x होता है. Of course from 0 to 1. Okay. Now I can put the upper limit and then the lower limit. तो आपका upper limit होगा 1 minus tan inverse of 1. Lower limit put करने की जरूरत नहीं क्योंकि lower limit से आंसर 0 ही आने वाला है. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Pi by 8 minus half. This is 1 minus pi by 4. And I can take it inside. So pi by 8, this is minus half plus pi by 8. And I think pi by 8 plus pi by 8 तो कितना होता है? 2 pi by 8 है ना? pi by Pi by 4. So of course I get the answer as pi by 4 minus half. Is it clear kids? Yes, sir. Yes, sir. Cool.
अगेन इट वाज नथिंग स्पेशल, ऐसे ये बेसिक सम्स ही है लिएट वाले, आपको यूवी आना चाहिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. लेट्स ट्राई द 15th प्रॉब्लम. क्या है वो? 0 to infinity है वो. 0 to infinity x into e raised to minus x. x into e raised to minus x dx. अगेन दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो एक ही चीज हम करते हैं, वो है यूवी. लिएट में एल्जेब्रिक पहले आता है और एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा, है ना. तो आई थिंक हम सबको पता है कौन सा u है. ये पहला वाला टर्म आपका u होगा, दूसरा वाला टर्म v हो जाएगा. इज इट ओके? सो नाउ लेट्स गो अहेड. यहाँ पर आएगा u इंटीग्रेशन ऑफ v, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव जो है 1, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन जो है e raised to minus x upon minus 1, एंड देन दोनों का साथ में इंटीग्रेशन. इज इट ओके? Yes, sir. है ना. u इंटीग्रेशन, अरे e raised to minus x का इंटीग्रेशन पता है ना, e raised to minus x and divide the answer by coefficient of x. Is it okay? Yes. Yes, sir. It is u integration v minus पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन एंड देन दोनों का साथ में इंटीग्रेशन. तो यहां से क्या करूंगा, माइनस को बाहर निकाल लेता हूं. तो आई गेट लाइक दिस x into e raised to minus x 0 to infinity. ये प्लस कर देते हैं तो हमें जो यहां से मिलेगा वो है e raised to minus x. अगेन ये भी बहुत ही आसानी होगा. आई कैन पुट द अपर लिमिट नाउ. तो यहाँ पर, हाँ चलो अब मुझे आप बताओ, ठीक है. अब यहाँ पर हम अपर लिमिट पुट करेंगे, हाँ के नहीं? Yes, sir. Yes, sir. पक्का ना? नाउ टेल मी, यहाँ पर जो अपर, यहाँ पर आएगा इन्फिनिटी इंटू ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी, हाँ के नहीं? Yes, sir. एंड यहाँ पर आएगा 0 हो जाएगा. इज इट ओके? 0 इंटू ई रेज टू माइनस 0. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. प्लस अगेन ई रेज टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन व्हाट? Minus 1. पक्का ना? -1. Yes, sir. दिस इज 0 to 1. 0 to 1 है ना? नहीं, 0 Yes, sir. 0 One. to infinity. Infinity, Infinity sir. है. Yes, sir. Infinity, sir. Is it okay? अब Yes, sir. आई थिंक सबको पता होना चाहिए e raised to minus infinity क्या होगा. What is e raised to minus infinity? 0 ना? Yeah. Yes, sir. अरे e raised to infinity is infinity, हाँ के नहीं? Yes, sir. And e raised to minus infinity is nothing but 0. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. ये वाला टर्म एक्चुअली डिसअपीयर हो जाएगा, ये भी टर्म डिसअपीयर हो जाएगा. इज इट ओके? Yes, sir. So this Yeah. infinity into e raised to minus infinity, there was some steps we had to do. हाँ शौर्य, वो तू लिस्ट में मत करना, बोर्ड में मत करना. लॉ पिटल रूल करते थे जेई में, Mhm. है ना शौर्य? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, लेकिन ये बोर्ड्स में कुछ मत करो, छुप छुप 0 लिखो, Okay. ठीक है. लॉ पिटल रूल इज नॉट एप्लीकेबल हियर, है ना. वो Hello. शॉर्टकट्स खाली जेई तक ठीक है, ठीक है. Yes, sir. हाँ चलो. सो माइनस, ओके. नाउ आई टेक माइनस आउट. So let's me put the upper limit. यहाँ पर आएगा e raised to minus infinity minus e raised to minus 0. Is it okay, kids? Yes, sir. यहाँ पर आ गया 0. Now what is e raised to minus infinity? 0. 0. And e raised to minus 0 is 1 upon e raised to 0. Minus. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. 0 minus. What is e raised to 0 का value? 1. So what is the answer straight away? 1. I hope सबको समझ गया यहाँ पर. Yes, sir. Okay, तो यहाँ पर खाली आपको uv करना है and then just do the upper limit minus the lower limit. Is it okay? Yes, sir. चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं. Okay. Now look at this set of problems which we are going to do. कोई बताएगा यहाँ पर क्या करना चाहिए? If anybody can help me in this. Tan x plus t. ओके, ऑब्वियसली. एक्चुअली किड्स देखो क्या है, जब ऐसे गंदे गंदे प्रॉब्लम्स होते हैं तो एक ही तरीका होता है, वो है आपको देखो वहां पर ऊपर क्या दिख रहा है, ऊपर आपको सेक्स पर दिख रहा है क्या? Six. Yes, sir. Sir. ओके, तो और नीचे tan x दिख रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपको एक फीलिंग आ जानी चाहिए, आई शुड पुट समथिंग t, बिकॉज़ इफ आई पुट, हम किसको t पुट करते हैं, हम इसका वैसे इसका derivative we can see. yeah, I can Yes, see the sir. derivative, right? So I can see tan x का derivative, right? So I'll Yes, just do one small thing here. I'll just plug in. I can just say put tan x को t, differentiate this guy with respect to x. तो tan x का डेरिवेटिव होता है sec square of x dx is equal to dt. अब यहाँ पर जो गलती होती है मैं आपको बता देता हूँ.
बच्चे ना एक स्टेप भूल जाते हैं. लिमिट्स को. Changing the limit. Changing of limits. मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे ना, मेजॉरिटी ऑफ जो बच्चे जो होते हैं ना, एक मिनट, या मेजॉरिटी बच्चे ना वो लिमिट्स को चेंज करना भूल जाते हैं. तो क्या होता है कि दे आर जस्ट सो मच एब्जॉर्ब्ड व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. वहां पर लिखेंगे 3t² प्लस 4t+1. काफी सारे बच्चे जिनको 97 या 98 मैथ्स में आता है ना, वो ऐसे बच्चे होते हैं ज्यादातर मिस्टेक इधर किधर कर बैठते हैं. तो यू टू बी वेरी मच केयरफुल. ओके, हाँ ना, अभी लिमिट चेंज करना जरूरी है बिकॉज आपने क्या किया, आपने tan x को t में कन्वर्ट किया है ना, तो आपको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा. सो आई जस्ट राइट इट डाउन. व्हेन this is the lower limit, so when your x is 0, tan of 0 is 0, so t will become 0. Is it okay? Yes, sir. When x is pi/4, जब आपका x 45 है, tan 45 1 है, तो आपको t मिलेगा 1. Is it okay? Yes. So this will become 0 to 1. Now once you reach here, I think it's a standard problem. I think मैंने आपको बहुत बार बताया भी है. If you 1 upon quadratic, क्या करते हैं जब 1 upon quadratic? Complete the whole square. हम यहाँ पर करते हैं कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर. और कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करने के लिए आपका x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है या t स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव 1 रखते हैं. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. सो देखो यहाँ पर क्या आएगा. आई गेट 1/3. दिस इज 0 to 1. लेट्स कंप्लीट द होल स्क्वायर. आई गेट t plus T plus 2/3. 2/3. The whole whole square. square minus 4/9 plus 1/3. Is it okay, kids? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now let's simplify this. This is 1/3, of course. This is 0 to 1. This is of course dt नहीं लिखा तो आपका आधा मार्क्स कट हो जाता है. काफी सारे बच्चे सोचते हैं उनको 99 मैथ्स में क्यों आया, 1 मार्क्स कहाँ चला गया. कभी कभी हम भूल ही जाते, कहीं पर dt लगाया नहीं हमने या प्लस सी नहीं लिखा, तो आपका बोर्ड्स में ऐसे मार्क्स कट हो जाता है. So multiply by 3, तो यहाँ पर आएगा 3 minus 4 minus 1/9. 9 is 1/3 the whole square. Is it okay? Yes, sir. LCM Yes, sir. 9 है तो 3 से मल्टीप्लाई किया है. -4 + 3 will be -1/9 and -1/9 will be 1/3 the whole square. Is it okay? Yes, sir. You have to be very much careful when you're doing these problems in board examination. जरा भी आपने कुछ भूल गए, स्किप कर दिया तो आप लटक जाओगे. ओके, अब ये देख के आपके दिमाग में कुछ याद आना चाहिए. Hindustan. Is this Hindustan formula? Yes, sir. Yes, sir. Yes, it's a Hindustan formula. It is 1/2a log mod of x minus a upon x plus a. Base is strong, huh? Ki nahi, kids? Yes, sir. So let's apply the formula. It will be 1/2a log mod of x minus a upon x plus a. Rajveer, तेरा ऑडियो बंद कर. Let's see. From 0 to 1. Is it okay? Yes, sir. 3 गया. तो what I get from here is finally I get this as 1/2. Let me just simplify it properly and then I put the limits. 2 minus 1. What is 2 minus 1? 1/3. Yes. यहाँ पर आएगा 3t plus 1. ये होगा 3/3 है ना, 3/3. Yes. T तो plus यहाँ पर 1. आएगा T plus- 3t plus 3. Is it okay? Okay. Yes. क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पर इसको 3/3 लिख दिया, इसको 1/3 लिख दिया, तो 3t plus 1/3 and 3t plus 3/3. By 3 will get cancelled. Is it okay? Yes, Yes, sir. sir. Now let's put the upper limit. So I can just put the upper limit. The upper limit put करें यहाँ पर आएगा log of. When I put 1, I'll get 4. Put 1, I'll get 7. Now put the lower limit. So put 0. तो यहाँ पर आएगा 1/3. ठीक है ना? Was 4/6. Yeah, 4/6. Sorry. This 4/6. Yeah. So I get log of a by b. So I will get here 4/6. This is 1/3. This 3 goes with 2. 2 and 2 गया. तो आपको मिलेगा half log of 2. Is it okay? Yes. Yes, sir. So this becomes the final answer. Again, this was based on putting t. Again, ये पता ही होना चाहिए हमें. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. Okay, standard problem that we have in front of our eyes. जब भी ऐसे कुछ गंदे प्रॉब्लम्स होते हैं तो हमेशा दिमाग में चलना चाहिए, किसी को टी पुट कर देते हैं. अब मेरे दिमाग में चल रहा है I'll put sin x as, sorry, cos x as t.
दिमाग में चल रहा है cos x as t, लेकिन cos x का डेरिवेटिव है माइनस साइन x, तो आई जस्ट नीड वन साइन. Yes, sir. इतना सारा साइन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही साइन चाहिए यहाँ पर. तो क्यों ना एक काम कर लेते हैं. I'll write sin square x as sin cube x as sin square x into sin x. Will that do? Yes, sir. Yes, sir. अच्छी बात है. उसके बाद I'll convert sin square x as in terms of 1 minus cos square. 1 minus cos square x. And once this is done, I think the picture becomes very much clear because I can very happily put cos x as t. तो डेरिवेटिव बाजू में दिख रहा है मेरे को. I can just say here put cos x as t. To differentiate this with respect to x. So cos x का डेरिवेटिव है minus of sin x dx is dt. So automatically आपका जो sin x dx है ना वो बन जाएगा minus of dt. Is it okay? Yes, sir. अब of course इतना होने के बाद I can just go ahead now. So I can just write, हाँ लिमिट चेंज करना भूल जाते हैं हम बहुत बार, तो वो हमें भूलना नहीं है. So let me change the limit. So जब आपका x 0 होगा तो cos of 0 1 होता है, तो आपका t 1 हो गया. और जब आपका x 2 pi होगा, when x is 2 pi, तो आपका cos of 2 pi. What is cos of 2 pi? What is cos of 2 pi? 1 ना? 1, yes. पक्का ना? 2 1 that's Same, 0. sir. ओके अब किस यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है. यहाँ पर मुझे आपको शायद नया चीज इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक मिनट मुझे क्वेश्चन एक बार चेक करने दो. वो यहाँ पर उन्होंने आंसर 0 ही रखा है. ठीक है चलेगा. आपका टी भी 1 आ गया ना वापस से, तो Yes, आप sir. लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है? 1 and 1. Same, sir. हाँ क्या नहीं? Yes. Yes, sir. और यहाँ पर है रूट ऑफ टी, दिस इज 1 माइनस टी स्क्वायर. अब मुझे ना यहाँ पर आपको कुछ बताना पड़ेगा किड्स. ये क्वेश्चन आई थिंक उन्होंने बुक में भी गलत तरीके से दिया. ठीक है, मैं आपको अलग तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ. यहाँ पर आ गया माइनस ऑफ डी टी. हाँ क्या नहीं? अब किड्स यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट जब दोनों का सेम होता है, जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम होता है, तो मैं आपको एक्चुअली नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताने वाला था, बट यहीं पर आ गया. लुक एट प्रॉपर्टी नंबर 1. जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम होता है, तब उसका क्या करते हैं हम लोग? आंसर क्या होता है? 0. Remember, if the lower limit and the upper limit is same, then the answer is 0. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो अब यहाँ पर आ जाना. तो यहाँ पर हम जब ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, हमने यहाँ पर क्या देखा? The lower limit and the upper limit is same, so automatically I get here that the answer is 0. Isn't that true? Yes, sir. और Yes, sir. आपके उन्होंने बुक में भी उन्होंने 0 ही दिया है by the way, but I am bit skeptical here, क्योंकि आंसर 0 नहीं होना चाहिए. आंसर 0 नहीं होना चाहिए. एक मिनट चेक कर लेते हैं. 0 to 2 पाई है. 0 to 2 पाई में ये फंक्शन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है. एक मिनट, लेट मी चेक इट. ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और ये वाला फंक्शन तो इसको नलीफाई कर देगा वो. या ठीक है नहीं ठीक है, आंसर राइट है. ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ओके, डोंट थिंक. मैं कुछ एक्स्ट्रा सोच रहा था. आई थिंक कुछ बच्चों को शायद पता होगा, जे वाले बच्चों को शायद पता होगा मैं क्या सोच रहा था. याद है किसी को मैं कुछ सोच रहा था? जो जे वाले बच्चे बैठे यहाँ पर, एनीबडी कैन रिकलेक्ट? एक्चुअली हम लोग इंटरवल्स में ब्रेक करते हैं, लेकिन ब्रेक तब करते हैं जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है. लेकिन यहाँ पर आप यू जस्ट फॉरगेट इट, क्योंकि हम बोर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो हमने चुपचाप क्या किया? जस्ट फॉरगेट एनीथिंग, एवरीथिंग. जस्ट चुपचाप मैंने क्या किया? मैंने साइन स्क्वायर एक्स को यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है. उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पर? एक मिनट. उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने cos x को t पुट कर दिया. Where is the motivation coming from? The motivation is coming from here, because sin x दिख रहा है, तो of course मुझे पता है अगर sin x दिख रहा है तो मैं cos x को t पुट करूंगा, डेरिवेटिव बाजू में है. उसके बाद मैंने लिमिट चेंज किया. When x is 0, cos of 0 is 1. When x is 2 pi, then again it will be 1. And if the lower limit and the upper limit is same, then automatically my answer will be 0. Is that true? Is it okay? Yes. अरे लोग Yes, कहाँ चले sir. गए?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो या आगे बढ़ते हैं. इसका पता है, इसका आंसर पता है जीरो क्या है, इसका जो ग्राफ है ना आधा ऊपर है और आधा नीचे है, तो आपको आंसर इधर जीरो मिल रहा है. इज इट ओके? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं. Okay, so let's go ahead. Number 5. 0 to pi by 2, kids. 0 to pi by 2. 1 upon 5 plus 4 cos of x. Let's go ahead. Now let me recollect. एक इंटीग्रल टाइप मैंने बताया था, if anybody remembers. Put tan x by 2 as x. T. Yeah, very good. Whenever we have a problem of this category or integral of this type, we should always put tan of x by 2 as t. Yes, sir. So your x by 2 will become tan inverse of t. So x will become 2 tan Nice, inverse tan of t. inverse. याद आ रहा है क्या? Yes, sir. So अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमें मिलेगा 2 upon 1 plus t square dt. t square dt. ये बहुत ही कॉमन है, हमें पता होना चाहिए. और जहां पर cos x है, cos x के बदले हम क्या लिखते हैं? 1 minus tan square x by 2 Upon 1 plus tan square x by 2. upon 1 plus of tan square x by 2. Is that true? Yes, sir. So I will get here 1 minus of t square upon 1 plus of t square. So अब करना कुछ नहीं है, ये जो स्टेप्स आपको जो दिख रहा है ना बोर्ड एग्जाम में, ये स्टेप्स लिखने का. यू शुड राइट दी स्टेप्स हियर, डोंट फॉरगेट. ओके, नाउ लिमिट चेंज करना भी हमें भूलना नहीं है. सो ऑफ कोर्स आई विल चेंज माय लिमिट आल्सो किड्स. सो आई विल से, आपने tan x by 2 को t पुट किया था ना, तो चलो व्हेन your x is 0, tan of 0 will be 0, so t will become 0. When x is pi by 2, so pi by 2 upon 2 will become pi by 4, so t will become tan 45. tan 45 1 होता है. Is it okay, kids? Yes, sir. चलो अच्छी बात है. So I will get from here. Sir, Yeah. so for the boards, we directly can't write the limits, no? We have to mention these steps. No? अरे सब कुछ करना पड़ता है. You, हाँ. are you want 100 marks? Yes, of course. हाँ. If you want 100 marks, then do everything. Additional भी लिख दो थोड़ा. सब कुछ लिखने का, सब कुछ. चांस ही मत दो सामने वाले को मार्क्स काटने को, नहीं तो तू भी 99 में फंस जाएगा फिर. No, no, sir. और मैथ्स में 100 लाना बहुत इजी है. 95 sir. तो सबको आएगा. Yes, sir. जो मेरे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उनको मिनिमम 95 मेरा ब्लेसिंग है, और जो सिंसियरली अटेंड कर रहे हैं उनको 100. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. सिंसियरली क्यों बोला है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग लेक्चर में बैठे हैं लेकिन घूम रहे हैं, पूरे घर के हॉल में घूम रहे हैं, या कोई लोग नाश्ता कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं. हाँ कि नहीं राजवीर? देख गायब हो गया राजवीर, गायब हो इधर ही हूँ सर. गया. चलो ठीक है, आई एम जस्ट कैंसिलिंग इट. ये समझ आया ना क्या कर रहा हूँ मैं? कुछ समझा नहीं रहा था मैं. आई जस्ट कैन एलसीएम. इज इट ओके? Yeah, sir. Two common. So I'll take 2. This is 0 to 1. 1 upon 1 upon. Okay. 9 plus t square. Wait, na? This is 5t square. This is minus 4t square. Na? 5 and minus 4 becomes t square. Plus 5 plus 4 will become plus 9. Is it okay? Yes, You know, sir. recollect which formula is this? Japan. Japan formula. 1 upon x square plus a square. So I get the answer as 1 upon a tan inverse of x by a. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So that's it, kids. I'll just put the upper limit. Lower limit will be 0 only. तो यहाँ पर आएगा tan inverse of 1 by 3. I hope this makes sense. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. अच्छी बात है. आगे बढ़ते हैं. Okay, I think ये भी standard problem है. कभी भी अगर ऐसे नेगेटिव पावर्स होंगे तो हमेशा उसको पॉजिटिव बना लेना चाहिए. स्टैंडर्ड मेथड है इसका. तो हम इसको 1 अपॉन लिखेंगे a square e raised to x plus b square upon e raised to x. Okay. So I'll just take an LCM here. तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जाएगा वो. यहाँ पर मुझे मिलेगा a square e raised to x the whole square plus b square. Is it okay, kids? Yes, sir. Yes, sir. Now I can put e raised to x as t.
डिफरेंशिएट किया तो e raised to x dx will become dt. Is it okay? Yes, sir. बस इतना होने के बाद अब चलो फटाफट लिमिट चेंज करना पड़ेगा. सो when x is -1, t will be e raised to -1, है ना? Yes, sir. And when x is 1, your t will be e. Is it okay? E. Yes, I sir. get the answer as 1 by e to e. ऊपर आ जाएगा dt, नीचे आएगा a t the whole square plus b square, है ना? a square Yes, t sir. square dt. Okay. Can anybody tell me अभी यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? Japan. जापान फॉर्मूला लगेगा ना kids? Yes, sir. Yes, sir. 1 upon x square plus a square is 1 upon a. A is b. 1 upon a. Tan inverse of x. Tan inverse of x by a. बट लोग कुछ भूल जाते हैं. बोलो क्या भूलते हैं? Divide by a. Divide your answer Coefficient by of x. coefficient of t. That is a. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. This is one of the steps that most of the people have forgotten, and they forget an exam actually, huh? So they'll end up getting 95, 96 something. Put the upper limit, I get tan inverse of AE by B minus tan inverse of A by BE. Is it okay? Yes, sir. तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है. ठीक है ना किड्स? Yes, sir. Okay. So finally kids, we reached the last part of the chapter. चैप्टर का ये लास्ट पार्ट मतलब प्रॉपर्टीज हमें बाय हार्ट होना चाहिए. चलो फटाफट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. प्रॉपर्टी 1, एक्चुअली डेफिनेट में एक ही चीज है, वो है प्रॉपर्टीज, क्योंकि डेफिनेट में इनडेफिनेट का ही काम कर रहे होते हैं हम लोग. ओके Yes, sir. चलो. ओके सो इफ द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट इज सेम देन द आंसर विल बी 0 ऑलवेज. इज इट ओके? Yes, sir. प्रॉपर्टी 2, a to b f of x dx. अगर आपका मन कर रहा है कि आपको लिमिट को इंटरचेंज करना है तो यू कैन इंटरचेंज द लिमिट, बट यहाँ पर बाहर क्या आ जाएगा? Minus. माइनस साइन. द साइन Negative विल sign. चेंज. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. a to b f of x dx is same as a to b f of t dt. मतलब आप वेरिएबल चेंज कर सकते हो, तो आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो a to b f of y dy. अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो a to b f of k dk. Yes, sir. In short, variables कुछ भी चलेगा लेकिन लिमिट सेम होना चाहिए. Is it okay? The property 3. Yes, sir. Okay, the property 4 is the splitting property. Yes, sir. A to C can be written as, sorry, A to B can be written as A to C plus C to B. Is it okay? Yes, sir. Where A is less than C, C is less than B. तो हम चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं. अगर सपोज 0 to pi है, sin x है, तो मेरा अगर मन करे तो मैं उसको ब्रेक कर सकता हूँ इंटरवल पे. क्या आएगा? 0 to pi by 2 Pi by 2. Pi Plus- by 2 to pi. pi by 2 to pi. Is it okay? Yes, Yes, sir. वेरी गुड. ओके, तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 4. ठीक है, सब तो बेसिक प्रॉपर्टीज है. सबसे ज्यादा जो यूज होता है प्रॉपर्टी वो है एग्जाम में, वो है आपका प्रॉपर्टी नंबर 5. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सॉरी, प्रॉपर्टी 5 नहीं, प्रॉपर्टी 6. ये उल्टा है, फिर प्रॉपर्टी 5 करेंगे. ठीक है, प्रॉपर्टी 6 क्या है? 0 to a f of x dx can be written as 0 to a f of a minus x dx. This is the property. 0 to a f of x dx can be written as 0 to f of a minus x dx. इसका मतलब क्या है? If you suppose 0 to pi by 2 sin x, इसका जो आंसर आएगा इट इज सेम एज 0 to pi by 2 replace x with a minus x. Is it okay? yes, यहां पर ये a का काम कर रहा है. Is that, will that do? अरे हाँ के नहीं? Yes, sir. sir. So I will get 0 to pi by 2. What is sin 90 minus theta? cos theta. Cos x. तो इसका जो आंसर आएगा और जो इसका आंसर आएगा, दोनों का आंसर सेम ही होना चाहिए. Is that true, kids? Yes, तो हमें ये पता होना चाहिए. प्रॉपर्टी नंबर 5, ये बहुत ही कॉमन यूज होगा. 0 to something है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो यू कैन थिंक ऑफ दिस प्रॉपर्टी. इज इट ओके? yes, sir. गुड. एक मिनट. चलो, अच्छी बात है. या सो रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी नंबर 6, और हम उसको यूज करेंगे अभी. डोंट वरी.
उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5, एक्चुअली 6 and 5 are connected to each other. They're saying a to b f of x dx can be written as a to b replace x with, they are saying replace x with what? Replace x with what? A plus b minus x. Replace x with a plus b minus x. यहां पर क्या था? Replace x with a minus a. एक्चुअली यही है. कैसा? Replace x with 0 plus a minus x. हाँ क्या नहीं? अरे हाँ क्या नहीं? Sum of Yes, limits minus x. Sum of the limit minus x. वही कुछ नहीं, वही है. Sum of the limits minus x. तो sum of the limit minus, so replace x with sum of the limit minus x. Sum of the limit minus x. तो बेसिकली ये तो वही जीरो ही है यहाँ पर, इसलिए हम लोग a minus x बोल देते हैं. Yes, Is it okay, sir. kids? Yes, sir. Yes, sir. ये प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी. ओके, उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 7. प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है? 0 to 2a है, f of x dx है. अगर आपको लिमिट को आधा करना है तो हम ये प्रॉपर्टी नंबर 7 यूज करते हैं. क्या करना चाहिए? 0 to 2a का आधा क्या? व्हाट इज 2a का आधा? a. तो 0 to a, लेकिन यहां पर आएगा f of x और यहां पर आएगा f of replace x with 2a minus x. Replace x with 2a minus x. तो अगर कभी भी लिमिट को आधा करने का जरूरत पड़ा, वो टाइम पे प्रॉपर्टी 7 यूज करते हैं. 0 to 2a, लाइक ना, आई गिव एन एग्जांपल. 0 to सपोज पाई है, log sin x, और मुझे लिमिट को अगर आधा करना है, कैन आई डिसाइड 0 to pi by 2 f of x, that is log sin x plus 0 to pi by 2. क्या लिखा है? Replace x with 2a minus x. So I'll replace this sin x with what? यहाँ who's 2a? Who's 2a? Sum of limits. हाँ, तो it will be sin of this is pi minus x. तो ये आपका f of x है. 0 to 2a f of x dx is 0 to a. a मतलब 2a का आधा. तो what is pi का आधा? Pi by Bye bye. again pi का आधा, pi by 2. Is it okay? Yes, Yes, sir. sir. f of x, and in place of x I will write 2a minus x. So in place of x I'll write 2a minus x, मतलब pi minus x. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, हमें भूलना नहीं है. उसके बाद जो आपका जो 8th प्रॉपर्टी है, इट इज बेस्ड ऑन ऑड एंड इवन फंक्शन. आपको इवन फंक्शन पता होना चाहिए. इफ f of minus x is f of x, इसको ऑड इवन फंक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल आप फंक्शन ले लो cos x. cos x एक इवन फंक्शन है. क्यों इवन फंक्शन है? बिकॉज अगर आप x को माइनस से रिप्लेस करोगे, इफ यू रिप्लेस x विथ माइनस x, व्हाट इज cos of minus x? Cos x. So are they both same? Yes, sir. तो ये cos x becomes an even function because ये दोनों सेम हो गया. Similarly, sin x is an odd function. Why sin x is an odd function? Sin of minus x is minus minus x. sin. Sin of minus x will be minus of sin x. The sign is changing. So if the sign is changing, then it becomes odd function. Is it okay, kids? Yes, sir. Yes, So sir. so remember when to use odd and even property. If you have a limit minus a to a, वो टाइम पे ऑड एंड इवन के बारे में सोचना है. अगर ऑड फंक्शन है तो सीधा आंसर 0 ही लिखने का, लेकिन अगर इवन फंक्शन है द आंसर विल बी ट्वाइस ऑफ 0 to a f of x dx. ट्वाइस ऑफ 0 to a f of x dx. ऑड में आंसर 0, इवन में ट्वाइस हो जाता है. So let's try a problem based on these properties so that we understand how to use it. Can I go ahead? Yes, sir. तो प्रॉपर्टी सम्स करेंगे तो हमें समझ जाएगा प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं. सो लेट्स ट्राई. ये एक सॉलिड एग्जांपल है आपके टेक्स्ट बुक से. या So even function will always be mirror image about x-axis, no? हाँ, yes. Can I go ahead? Yes, sir. Yes, sir. Okay. सबसे पहली बात, प्रॉपर्टी नंबर 6 भूलना मत. सॉरी 6 नंबर बहुत बार बार यूज होता है. Whenever you come across very complicated problem, very strange problem in examination, and you don't know how to solve, you just don't know how to solve, just don't know. And if you don't know how to solve, and if you see at the limit 0 to something, then 99% property number 6 will work. 99% property number 6 will work. Can I start? Yes, sir. So let's say I'll just write the property. Of course, I'll use we know that 0 to exam में property लिखना पड़ता है.
एग्जाम में प्रॉपर्टी लिखना पड़ता है, पब्लिक समझ रहा है क्या? Yes, sir. Replace x with a minus x. So I am calling the question as I. मैं क्वेश्चन को I बोल देता हूं. इसको 0 to pi by 2 मैंने है, ये आपका 1/1 plus cube root of tan x, ये मेरा क्वेश्चन है. और मैं अभी क्या करने वाला हूं? I'll use property number 6 in front of you. तो जब गंदे प्रॉब्लम्स होते हैं तो रिप्लेस यूज द प्रॉपर्टी नंबर 6 जब 0 to something होगा. तो क्या करेंगे? Replace x with what? Replace x with what? Tell me. Pi by 2 minus x. Pi by 2 Ah. minus x. Very good. So I'll replace x with pi by 2 minus x. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Now chalo tell me what is tan of 90 minus theta? Cot theta. Cos theta. So I get 1/1 plus cube root of cot x. Will that do? Yes, sir. Yes, sir. Of course, now I can write cube root of cot x as 1 upon cube root of tan x. Will that do? Yes, sir. So now do one thing, you take an LCM. 0 to pi by 2. If I take an LCM तो cube root of tan x ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा cube root of tan x plus 1. That is 1 plus cube root of tan x. Is this step okay? Yes, sir. Now look at this. This is, I'll just call this as equation number 2. Now this is equation 1. Equation 2. Is the denominator same? Yes, sir. Is the denominator same? Yes, sir. Yes, sir. So I'll just say 1 plus 2. So I plus I will become 2i. Will that do? Yes, sir. And since the denominator is same, so I'll take an LCM. I get 1 plus cube root of tan x. Is it okay? Yes, sir. Similarly, even in the numerator will be 1 plus. So यहाँ पर आएगा 1 plus cube root of tan x. Is that okay? Yes, sir. And now what will happen? चलो बता दो. Cancel. हाँ, आपका ये टर्म कैंसिल हो जाएगा. तो आपको बचा क्या? आपका बचा 1 है ना पब्लिक. Yes, sir. और 1 का इंटीग्रेशन पब्लिक क्या होता है? A. X. X from 0 to pi by 2. So 2i upper limit minus the lower limit. तो आपका आंसर मिलेगा pi by Pi by 4. 4. Is it okay? Yes, Yes, sir. sir. कभी भी कोई ऐसे गंदे प्रॉब्लम आएंगे तो 0 to a का प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो एंड आप देखोगे यहाँ पर जब ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाता है टर्म. इज इट ओके? Yes, sir. तो हमें ये प्रॉब्लम पता होना चाहिए. इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं. Look at this. All these problems are of the same category, same method, same method. So with the help of the above solved list example, verify whether the following example and सबका आंसर सेम ही आएगा. पता आंसर क्या आएगा? Pi by 4. Pi by आएगा. 4. Do the same thing, आपको वही मिलेगा. Same thing. यहाँ पर आएगा cos, यहाँ पर आएगा sin, यहाँ पर आएगा cos. And when you add them again, it will become 1 only. Same thing. It can become 1 only. You can try for all these sum. They will fetch you the same answer. Is it okay? Yes, sir. Actually क्या होता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना. आपको समझ है कॉम्प्लीमेंट्री? Yes, sir. साइन कॉस कॉम्प्लीमेंट्री है, टैन एंड कॉट कॉम्प्लीमेंट्री है, सेक एंड कोसेक कॉम्प्लीमेंट्री है. इसके वजह से क्या होता है जब आप कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो, tan 90 minus theta is cot theta, या sin 90 minus theta is cos theta. When you add equation 1 equation 2 together, always what will happen, the numerator and denominator will be same, again will get cancelled and the answer will be upper limit minus the lower limit by 2. Is that true? Yes, sir. Upper limit minus lower limit, upper limit and lower limit by 2, upper limit minus lower limit by 2, upper limit minus lower limit by 2. Is it okay? Yes, sir. So good. आपके बोर्ड्स में जब MCQs आते हैं ना बोर्ड एग्जाम में, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो. Is it okay? Yes, sir. अच्छी बात है. So can you repeat that? What has to be same? What has to be same मतलब? So मतलब when will we use upper by limit minus lower limit by? और यहाँ पर तो देख ली, यहाँ पर this problem is true only when it is 0 to pi by 2. तभी जाके ये करना है. Is it okay? Okay. Okay. तो pi by 2 का कनेक्शन होना चाहिए. श्योर है? ऐसे याद रख. pi by 2 का कनेक्शन होना चाहिए दोनों के बीच में. Okay. Is it okay? ऐड करके pi by 2 आना चाहिए. Remember this. Is it okay? Okay, sir.
तो अब मैं आपको बताता हूं सिमिलर कैटेगरी का प्रॉब्लम. लुक एट दिस प्रॉब्लम नाउ. इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूं. इसका आंसर एक्चुअली होगा 5/3 स्ट्रेट अवे. नहीं 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 5/2. इसका आंसर 5/2 हो गया. मैं बताता हूं कैसे. देखना यहाँ पर क्या होगा. 8 minus 3. अपर लिमिट लोअर लिमिट बाय 2. Yes, यहाँ पर यही आएगा. देखते कैसे. लेट्स ट्राई. आपको जो बोर्ड में जो एमसीक्यूज आते हैं ना उसमें काम आ जाते हैं, नहीं तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा और कुछ नहीं. चलो लेट मी डू इट. एज आई टोल्ड यू ऑल, अब यहां पर 0 to something नहीं है, और क्योंकि यहां पर 0 to something नहीं है, यहां पर ना करेक्शन लग रहा है. a प्लस बी मैन, हाँ यहां पर एक करेक्शन है. यहां पर 11 होना चाहिए था. कैन आई स्टार्ट? Yes, sir. ओके. अब ना ध्यान से देखो वापस से. नाउ यहां पर जब 0 to a तो नहीं है, तो आपको यहां पर a to b वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगा. रिमेंबर a to b वाला प्रॉपर्टी B minus A by 2. f of x dx. तो यहां पर क्या करना है हमको? वी शुड रिप्लेस x विथ a plus b minus x. Is it okay? Yes, sir. नील नाफरे, is it okay? नील है कि नहीं क्लास में? Hello. नील, is it okay? You getting it ना? Yes, sir. या ठीक है. चलो ओके. सो क्या करेंगे कि लेट्स अप्लाई द प्रॉपर्टी. जब a to b, मैंने वही तो बता रहा हूं, मैं प्रॉपर्टी नंबर में वही तो बता रहा था. ये जो प्रॉपर्टी है ना 5 and 6 बहुत ही यूज होगा. जो 0 to समथिंग होगा तो 6 यूज करना, a to b होगा तो 5 यूज करना. चलो तो यहां पर a to b गंदा प्रॉब्लम है, a to b वाला है, तो अप्लाई द प्रॉपर्टी. देखो क्या होगा. So I'll replace x with what? A plus b minus 6. I should replace x with what? A plus b minus 6. Tell me क्या लिखूं? x के बदले क्या लिखूं? 8 plus 3 minus Plus 3 कितना होता है? 11. So 11 a minus plus x. b minus 6. Is it okay? Yes, sir. So replace x with a plus b minus x. Is it okay? Yes, sir. Again, replace x with a plus b minus x. I hope it's okay, kids. Yes, sir. Let's go ahead now. Wrap it up. तो ऊपर आ गया x स्क्वायर, नीचे आ गया 11 minus x the whole square, और यहां पर आ जाएगा x स्क्वायर. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. आपको समझ गया ना अभी क्या हुआ अभी? हाँ, sir. Can I add equation 1 and 2? Yes, sir. क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं दोनों का? Yes, sir. So when I add 1 and 2, what will happen? चलो tell me what will happen? 2i. और यहां पर ऊपर भी सेम, नीचे भी सेम, आके नहीं? हाँ, sir. So can I cancel the term? Yes, sir. Yes, sir. So again 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा from 3 to 8. So I got the answer as 8 minus 3. तो आंसर हो गया 5/2. 5. Is it okay? Yes. Yes, sir. Okay, देखो मस्त आंसर आ गया ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2. Is that true? Yes, sir. In fact, now look at this property. आप ये भी याद रख लो, MCQs में काम आएगा आपको, बोर्ड्स के MCQs में. If you have a to b, you have some function, और यहां पर है a plus b minus x. Look at the previous example. Function and a plus b. Replace x with 8 plus 3 minus x. तो आपको x मिल जाएगा. Is it okay? Yes, sir. So whenever you have some same function यहां पर और यहां पर होगा a plus b minus x, at that time your answer will become upper limit minus the lower limit by 2. Is it okay? Yes. So look at this example. Similar prop method है, a plus b minus x. a plus b minus, देखो 13 minus x आ रहा है. a plus b minus, देखो 9 minus x आ रहा है. Function repeat हो गया, a plus b minus x. Function repeat हो गया, a plus b minus x. Function देखो, function repeat हो गया, a plus b minus x. समझ रहे हैं क्या? Yes, sir. यहां पर भी आंसर π/4 क्यों? देखो यहां पर शौर्य, यहां पर चेक कर तू, दोनों का एडिशन क्या हो रहा है? 60 plus 30 कितना होता है? 90. 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. आगे 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ क्या नहीं? Yes, sir. So that's why this will work. Which one will work? You know this. Let's see. 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा सम? Yes, sir. तो यहाँ पर आपका वो आंसर वही होगा, अपर माइनस लोअर बाय 2. तो आंसर यहाँ से आपको वही आंसर आएगा, अपर माइनस लोअर बाय 2.
तो इसका आंसर पाई बाय 4 आ जाएगा. Isn't that true? Yes, sir. तो ये है. आपको कुछ शॉर्टकट्स याद होंगे तो आपको बोर्ड्स के एमसीक्यूज में आपका टाइम बच जाएगा, और कुछ नहीं है. चलो अच्छी बात है. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में किया था. व्हेन वी कम अक्रॉस एन एक्सप्रेशन लाइक दिस, और इंटीग्रेशन में किया था एक्सप्रेशन लाइक दिस, तो आपके दिमाग में सब्स्टिट्यूशन चलना चाहिए. कौन सा सब्स्टिट्यूशन कोई बताएगा? पुट एक्स एज ए साइन थीटा. कुछ याद आया एक्सप्रेशन देख के? Yes, sir. A ऐसा square है. become common sin. डेरिवेटिव्स में भी है, इंटीग्रेशन में भी है, हाँ कि नहीं? Yeah, 1 minus sin square हाँ. cos तो square. पहले एक काम करते हैं, पहले ना हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं, फिर देखते हैं आगे करना क्या है. इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जहां पर सब्स्टिट्यूशन वाले प्रॉब्लम्स काम आते हैं. आई जस्ट से पुट x इज इक्वल टू a sin थीटा. डेरिवेटिव करना जरूरी है. तो इफ आई टेक अ डेरिवेटिव आई गेट a cos थीटा d थीटा. इज इट ओके? Yes. Yes, आपको sir. लिमिट तो चेंज करना पड़ेगा. तो व्हेन अगर आपका x 0 है तो 0 upon a will be 0, sin theta is 0 and sin theta is 0, then theta will become 0. Is it okay? Yes. Again I am saying if x is 0, 0 upon a will be 0, so sin theta will be 0, and if sin theta is 0, then theta will be 0. Is it okay? Yes, sir. And if x is a and a will get cancelled. I get sin theta is 1, and if sin theta is 1, then theta has to be 90. pi 5 by 2. Is it okay? Yes. तो आपका जो प्रॉब्लम अभी बन जाएगा वो हो जाएगा अभी यहाँ पर, वो है 0 to पाई बाय 2. ऊपर dx है ना, सो dx के बदले आपको ये लिखना पड़ेगा. यहाँ पर आएगा a cos थीटा d थीटा. नीचे x के बदले आएगा a sin थीटा प्लस यहाँ पर x के बदले आएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. a स्क्वायर कॉमन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. नाउ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा. So a square cos square theta का root will become a cos theta. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. मैंने x को यहाँ पर पुट किया है. Is it okay? Yes. चलो अच्छी बात है. तो मैंने यहाँ पर x को पुट कर दिया. I got this. I can take a common, तो a will get cancelled. So I am left with 0 to pi by 2 cos theta upon sin theta upon cos theta. अब बच्चे ना उनको आंसर ओरली देने को आना चाहिए. इट्स 0 to pi by 2. व्हाट इज Yes, एडिशन? sir. Yes, What is sir. addition? Pi by 2 ना? Pi by 2. And Answer pi by 4. are they complementary guys? Yes, sir. Yes, sir. Answer has to be pi by 4 only ना? Pi by 4. Ah, sir. Yes, sir. But of course बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं चलेगा रे बच्चा. तो आपको पूरा प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा. तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी नंबर 6 अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा, रिप्लेस x विद a माइनस x होगा. हाँ कि नहीं किड्स? Yes. So Yes, sir. replace theta with pi by 2 minus theta, Minus. and cos 90 minus theta will become sin theta. Is it okay? Yes, sir. Sin 90 minus theta will become cos theta, Cos theta. and cos 90 minus theta will become sin theta. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. And once you do this, can I add both of them? Yes. Yes. So I and I will become 2i. Again the same old picture. Isn't that cool, kids? Yes. So your 1 ka integration will be theta from 0 to pi by 2, and then I can say upper limit minus the lower limit. So my I will become pi by 4. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Very nice. Okay, so किस such a nice problem. आपको ये याद होना चाहिए था. ये चीज हमने डेरिवेटिव्स में भी देखा है और इंटीग्रेशन में भी देखा है. तो ऑफ कोर्स मैं आपसे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता. आपको कुछ याद ही नहीं रहता है. कल क्या खाना खाया वो भी शायद याद नहीं रहेगा. तो ये क्या याद रहेगा? Whatever it is, you put it and then you go ahead accordingly. Is it okay? Yes, sir. So 1 minute, can you just go back for 1 Yeah. second? Yeah. Is it okay? अरे ओके जय, किधर गया रे तू?
Yeah, sir. I'm just seeing the last part. Yeah. Cool. Continue. Any doubt anywhere? No, sir. Understood. I hope everybody is okay with it. Yes, sir. चलो ठीक है. Okay, so now these all problems are very nice problems and easy problems, और आपको मजा आएगा कि सबके आंसर 0 ही आने वाले हैं. ये तीनों क्वेश्चन के आंसर 0 है. देखते हैं कैसे. देखो मैंने एक बात बताई थी आपको. क्या? जब बोर्ड एग्जाम में आपके पास 0 to a वाला सम है और सम बहुत ही अजीब सा प्रॉब्लम अगर है ना, तो आप सीधा प्रॉपर्टी अप्लाई करना, देखना जादू हो जाएगा. कैन आई स्टार्ट? Yes, sir. So apply property number 6. What is property number 6? pi by 2 minus x. So replace x with Pi by 2 minus a. तो यहाँ पर x के बदले आ जाएगा a minus x, मतलब pi by 2 minus x. Will that do, kids? Yes, sir. अच्छी बात है. Now what is tan of 90 minus theta? Cot theta. Cot theta. So it will be log of cot of x. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. And the beauty of these problem is you add equation 1 and 2, it will become 0. You add equation 1 and 2, it will become 0. देखते कैसे? If I add 1 plus 2, what happens? I and I will become 2i. चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. 0 to pi by 2, और यहाँ पर आएगा log of tan x Into cot x. plus log of cot x. Is it okay? Yes, Yes, sir. sir. Now log of a plus log of b क्या होता है? Log of a. Log of a. Log to b. That is tan theta into cot theta. Is it okay? Yes, sir. Yes, What is sir. tan theta into cot theta? 1. 1. Log 1 What is is log 1 0. का value? 0. 0. आपको 2i become 0 and therefore your I will become 0. And 0 is the answer. Is it okay? Yes, sir. And interestingly, for all this problem, you get the answer 0 only, because when you add both of them, it will get cancelled. Let me try one more. Chalo. Number 3. 0 to 1 log of 1 by x minus x. ये अर्जुन कोहली, Yes, sir. ये तू ध्यान दे रहा है Sir, ना? I am here only, sir. हाँ, लेकिन तेरा ध्यान नहीं रहता है लगता है. ये सब समझ रहा है तेरे को मैं क्या पढ़ा रहा हूँ क्लास में? हाँ सर, प्रॉपर्टी के हिसाब से जा रहे हो, हर एक प्रॉपर्टी को आप एक्सप्लेन कर रहे हो. बस प्रॉपर्टी के हिसाब से ही जा रहा हूँ. हाँ और मैंने काम दिया वो काम करने का. पता है ना, काम दिया ना तुम लोग को मैंने. हाँ, आपका Yes, टाइम टेबल sir, थोड़ा अच्छा कर रहे सर. हैं. हम एवरी डे का टाइम टेबल फॉलो करो. जो जेई वाले बच्चे बैठे हैं, एवरी डे क्या क्या पढ़ने को बोला है मैंने, आपको लिख के दिया है मैंने. इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता. एग्जाम में आपके बाजू में मैं नहीं बैठ सकता. हाँ क्या नहीं? हाँ बिल्कुल Yes. बड़ा अच्छा टाइम टेबल है सर. मैंने पूरा चिपका दिया, पूरा सितंबर और बाकी अगस्त का एक हफ्ते का पूरा मैंने चिपका दिया मेरे बस. बोर्ड पे. सब बहुत ही सब practical- कुछ ऐसा है. बहुत ही प्रैक्टिकल टाइम टेबल दिया है तुम लोग को मैंने. ठीक है, हाँ चलो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. ओके, अगेन दिमाग में जब कुछ काम ना आए तो चुपचाप प्रॉपर्टी नंबर 6 अप्लाई करने का. इजंट दैट ट्रू? Yes, sir. देखो ब्यूटी देखना, इसका ब्यूटी क्या है आप देखना. इसका ब्यूटी क्या है? इसका ब्यूटी है इट इज 0 to 1. हम x के बदले क्या लिखेंगे बताओ? चलो x के बदले क्या लिखना चाहिए अपने को? 1 minus. 1 minus x. हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 minus x और यहाँ पर भी x के बदले आ जाएगा 1 minus x. इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. आई थिंक आपको देख के समझ गया होगा ना अभी किड्स. 1 और 1 हाँ, कैंसिल sir. हो गया, तो यहाँ पर आ गया x upon 1 1 minus x. minus x. अब क्या कहना है? ऐड बोथ ऑफ देम. Yes, sir. Yes, sir. अब मैं कैन आई स्किप द स्टेप? कैन आई स्किप द स्टेप? Yes. If I add 1 and 2, what will happen? It will be 2i 0 to 1. हाँ क्या नहीं? Yes, sir. yes, sir. Log of this plus this, तो यहाँ पर आएगा 1 minus x upon x into x upon 1 minus x, है ना? Yes, sir. Yes, sir. It will cancel. It will get Which is 0. log Log 1 of log is 1 will zero. be again 0. 0. The answer is 0. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. So kids, I'm not doing the next problem. This is this Sir. problem. एक मिनट. हाँ क्या हुआ आर्यन? Sir, we could do one more thing also. ये क्या? नंबर 2 है ना, हाँ उसको मतलब जो लॉक के अंदर है उसको इन्वर्ट करते तो माइनस हाँ, साइन वही हो बाहर आ गया. जाता अरे है. बात वही हो जाती है ना. हाँ कर सकते हैं. Yes, sir. So again kids, this problem can also be solved in similar manner. Is it okay? Yes, sir.
Yes, sir. सेम तरीके से करना, सम सॉल्व हो जाएगा। चलो ओके किड्स, एक बात बताई थी मैंने प्रॉपर्टीज के बारे में, ऑड इवन के बारे में बताई थी। गेट बैक, ऑड इवन के बारे में मैंने कुछ बताया था, ऑड इवन के बारे में। व्हेन टू थिंक अबाउट ऑड एंड इवन, व्हेन टू थिंक अबाउट ऑड एंड इवन, -a to a. whenever you have -a to a, you can think about odd and even, हाँ कि नहीं? Yes. Yes, If it is sir. odd, answer will be 0. Function अगर odd है तो answer will be 0. Function अगर even है तो यहाँ पर आएगा twice 0 to f of x dx. Is it okay? Yes, sir. चलो अच्छी बात है। तो let's try a problem जिससे आपको ये भी समझ जाए odd even property वाला सम। चलो मैं करके बताता हूँ। पहली बात है, एग्जाम में जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है ना किड्स, हम तो पहले उसको आई ही बोल देते हैं, लेकिन आप जब -a to a देखते हो ना तो इमीडिएटली आपके दिमाग में ऑड एंड इवन फंक्शन आना चाहिए। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, एक sir. काम करते हैं, एग्जाम में क्या करने का, फिर इस फंक्शन को आप चेक करो ऑड है कि इवन है। ओके तो उसको पहले हम f of x बोलेंगे बोर्ड एग्जाम में, लेट दिस बी f of x, और चेक करो ये ऑड है कि इवन है। और कैसे करते, हाउ टू चेक ऑड एंड इवन? Replace x with -x. replace x with -x. So if I replace x with -x, तो यहां पर आएगा -x का होल क्यूब, 9 माइनस यहां पर आएगा -x का होल स्क्वायर। सो आई गेट f of -x, यहां पर आएगा -x क्यूब, और यहां पर आएगा 9 minus x square. Is it okay? Yes, sir. Now can I say from 1 this is f of x only, kids? Is it f of Yes. x? Yes, sir. I can say f of Minus minus x equal to minus of f of x. Is that true? Therefore, odd function. Enough from 1. So I can Answer say zero. for f of x is an Odd. odd function, and therefore आपका answer should be, Zero. So, is it true? Yes, sir. so this we can write directly for boards, na? या लेकिन प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हाँ. सिंस ऐसा रीजन लिखना पड़ेगा, -a to a odd function 0 ऐसा। Yes, sir. Yes, sir. Okay, now let's try this one, number 7. नंबर 7 का भी आंसर 0 ही आने वाला है क्योंकि वो ऑड फंक्शन है, -π/2 to π/2। -π/2, एक मिनट, -π/2 to π/2 किधर गया? log 2 plus sin upon 2 minus sin, log 2 plus sin x upon 2 minus sin x। तो ये आपका फंक्शन है। आई थिंक आपको देख के शायद समझ जाएगा ये फंक्शन ना ऑड फंक्शन है। देखते हैं क्यों। मैं इसको f of x बोल देता हूं। ओके, इस बार मैं थोड़ा शॉर्टकट अप्लाई करता हूं, बोर्ड एग्जाम में शॉर्टकट मत करना। ओके किड्स, क्या करने वाला हूं, आई विल रिप्लेस x विद व्हाट, -x. तो यहां पर भी आएगा x के बदले -x, तो sin of -x will be minus sin x। इज इट ओके? Yes, sir. अगेन sin of -x will be minus sin x। इज इट ओके? प्लस हो जाएगा। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ आई थिंक सबको ये प्रॉपर्टी पता होगा लॉग का, Invert करो तो करके minus minus कर देना. a by b is minus of log of E e by by A. a। Is that true? Yes, sir. यहाँ पर आएगा minus of log of 2 plus sin x upon 2 minus sin x। Is it okay? Yes. Yes, So now sir. who's this guy? F of x. Of course, I can say f of minus x is equal to minus of f of x. So is it an odd function? अरे Yes, हाँ कि sir. नहीं? तो of course automatically इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर will be 0. Is it okay? Is it okay? अरे हाँ बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, ठीक है। Yeah. Okay, kids. So I'll tell you, I'm not going to solve this. Even this is an odd function, तो इसका भी आंसर 0 ही आने वाला है। तो आप थिंक आप लोग मैनेज कर सकते हो। हाँ, अब इसमें इंटरेस्टिंग, ये थोड़ा अजीब सा प्रॉब्लम है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑड एंड इवन है। मैं आपको बताता हूं कैसे। अब नॉर्मली बच्चे क्या करेंगे जब -a to a देखेंगे ना, when they see -a to a, तो फंक्शन को चेक करते हैं by replacing x with -x। अब इसके साथ क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूं। अगर आप x को -x से रिप्लेस करोगे तो यहां -x आ जाएगा, यहां
cos of minus x is cos x only. तो बेसिकली मैं जो कर रहा हूँ वो करना मत, फिर मैं करके बताता हूँ. ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, इसको f of x बोलेंगे, वो इसको f of x बोलेंगे, फिर वो x को रिप्लेस करेंगे माइनस x से. तो यहां पर x के बदले माइनस x आ जाएगा, और यहां पर cos x के बदले माइनस x, तो फिर भी ये cos 2x रहने वाला. डू यू एग्री? Yes, sir. अब प्रॉब्लम क्या है कि आप यहां पर f of माइनस x को भी यहां से आप कुछ पुट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये वाला टर्म यहां नहीं है. हाँ, अगर यहां माइनस साइन होता, आई वुड हैव टेकन माइनस कॉमन और फिर मैं स्ट्रेट अवे उसको f of x बोल देता. हाँ कि नहीं? Yes, sir. अगर यहां माइनस होता तो, if here it would have been minus sign, I would have taken minus common and called it as f of x. Is that true? And you understand? Yes, sir. But the problem is here, even if I take minus common, it does not become same. Do you see this? Yes, sir. Yes, sir. So this is the problem here. ऐसे फंक्शन को बोलते हैं neither even nor odd. Do you understand? Yes. So हर फंक्शन इवन ऑड नहीं होता है, पहले तो ये क्लियर हो जाए आपको. हर फंक्शन ऑड या इवन नहीं होता है किड्स. Yes. Only few functions are odd or even. Majority all are neither even nor odd. तो जब एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम आ गए, एंड बाय द वे आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने ऐसे प्रॉब्लम दिए हैं, एक दो प्रॉब्लम है, तब आप क्या करोगे वो आपको मैं बताने वाला हूं. तो ठीक है, मैं इसको पहले रब कर देता हूं, मैं आपको फिर बताता हूं इसको कैसे करना है. इंटरेस्टिंग. देखो, क्योंकि ये पता नहीं है ऑड है कि इवन, तो क्या करो आप उसको दो पार्ट में ब्रेक करो. कौन से दो पार्ट में? एक है माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4. एक ये वाला पार्ट लेके जाओ और दूसरा फिर ये वाला पार्ट लेके जाओ. स्प्लिट करेंगे, आई मीन टू से x अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस पाई बाय 4 बाहर रख लेता हूं, पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 1 अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ 2x. समझे क्या कि मैंने स्प्लिट किया है? इज इट ओके? Yes, sir. Yes, अब sir. ना आप इसको आंखें फाड़ फाड़ के देखो. अब आपको दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करना है, दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करना है. एंड बाय द वे नाउ चेक दिस आउट. इज इट एन ऑड फंक्शन? Yes. इज इट एन ऑड फंक्शन? Yes, sir. है ना? f of x is x अपॉन 2 माइनस कॉस 2x. अगर आप रिप्लेस x विथ माइनस x करोगे, यहां पर माइनस x आएगा, नीचे माइनस कॉस और माइनस विल बी कॉस ओनली. तो कैन आई से द साइन हैज चेंज्ड? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. जीरो ही आने वाला है. इज इट ओके? Yes, sir. तो इसका आंसर 0 हो गया. तो अब बच्चा इसके बारे में बात करते हैं. बाय द वे ये वाला पार्ट है ना, ये एक इवन फंक्शन है. तो मैं Even. नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूं. तो बच्चा खुचा प्रॉब्लम बचा है, वो है 0 टू पाई बाय 4. दिस इज माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4, और यहां क्या बचा है? 1 अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ 2x. अब वंस यू रीच हियर, यहां पर चेक कर लो, अगर आप रिप्लेस x विद माइनस x करोगे तो साइन नहीं बदलेगा. हाँ कि नहीं? Yes. हाँ ये sir. इवन फंक्शन है, और अगर इवन फंक्शन होता है ना किड्स, इफ इट्स एन इवन फंक्शन, आई कैन राइट दिस एज ट्वाइस 0 टू a f of x dx. इज दैट ट्रू? Yes, sir. ओके, सो ये इवन फंक्शन है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं. तो आई कैन राइट दिस एज ट्वाइस 0 टू पाई बाय 4, है ना, 0 टू a f of x dx. Is this okay? Yes, sir. And once you reach here, this is pi by 2. This is 0 to pi by 4. Yes, some of the students are having, I think, Sachin sir's class. Huh? They can leave in between. Yes, sir. Okay, no problem. They can leave in between. I am recording the last part. ज़्यादा part नहीं है. आपको मैं फिर भेज दूंगा. Is it okay? Thank you, किसी का sir. class है तो. Okay, sir. Now, Yes, sir. now the question: how to solve this problem? Now the question: how to solve this problem? To solve this problem, I can. There are many methods. One is I can put tan x as t. One method is put tan x as t, and then x will be what? Tan inverse of t. याद है कुछ कुछ? अगर Yes, sir. यहाँ 2x है तो हम लोग आधा एंगल को t पुट करते हैं. Is that true? Yes, sir. लेकिन मैं कुछ और करने का सोच रहा हूं. क्या? देखो मैं क्या करने का सोच रहा हूं. Cos 2x can be written as 1 minus
2 sine square x. Do you agree? Yes, sir. 2 minus 1 will be 1 plus 2 sine square x. Is it okay? Yes, sir. और मैंने आपको एक बात एक सिखाया था लास्ट टाइम ओनली, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिखे, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर करो, tan x को t पुट करो, hpj अप्लाई करो, I can divide the numerator and denominator by cos square. If I divide by cos square, it becomes sec square x. Divide by cos square, it becomes sec square x. Divide by cos square, it becomes tan square x. Is that true? Yes, sir. Now sin square cos square दिखे, divide by cos square करो, जो मैंने किया. Now do one thing, convert this sec square x as 1 plus tan square. So it become 1 plus 3 tan square. हाँ क्या नहीं? Yes, sir. And आगे का पार्ट मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था. Put tan x as t. Can I put tan x as t? Why I am putting tan x as t? X square x in the numerator. डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है. Put tan x as t and then apply HPJ. HPJ मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान है. Japan. So this is the method for solving this problem. So again I am saying kids, यहाँ क्या प्रॉब्लम, एक स्पेशल कैटेगरी प्रॉब्लम है जो यूनिक प्रॉब्लम है आपके बुक में. ये नीदर इवन है नॉर ऑड है, तो मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया. फर्स्ट पार्ट और फंक्शन तो जीरो हो गया. सेकंड पार्ट को सॉल्व किया. सेकंड पार्ट में मैंने चेक किया तो इवन फंक्शन है तो ट्वाइस करके किया, और फिर आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने को आना चाहिए. तो मैंने क्या किया, मैंने इसको साइन में कन्वर्ट कर दिया, और फिर मैंने स्टैंडर्ड मेरा प्रॉब्लम था, मैंने टाइप सिखाया था. वो टाइप क्या है? द टाइप इज 1 अपॉन a साइन स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस c. Divide the numerator and denominator by cos square x. Can you recollect now? Yes, sir. तो वही मैंने किया और सॉल्व कर दिया. इज इट ओके? Yes, sir. अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं. ओके नाउ आई थिंक ये भी मैनेजेबल है. यहाँ पर स्टैंडर्ड मेथड आपको बता देता हूँ. पुट tan x, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा. ओके, तो आपको मिलेगा, मैं जब डेरिवेटिव लूंगा तो मुझे मिलेगा dx इज sec स्क्वायर ऑफ थीटा d थीटा. इज इट ओके? Yes. लिमिट चेंज करेंगे. If x is 1, then tan inverse of 1 will be 45. Is it okay? Yes, sir. And when x is 0, then tan inverse of 0 will be 0. Is it okay? Yes, sir. So I get 0 to 1 log of, I'll get tan theta plus 1. 1 plus tan square theta will become sec square theta. And in place of dx, I can write sec square theta. Is it okay? Yes, sir. Is it okay? Yes, sir. Again, I am repeating so that you understand. I have put x as tan theta, so 1 plus tan square theta will become sec square theta. Is it okay? Yes, sir. In place of dx, I am writing sec square theta d theta. Is it okay? Yes, sir. Now this term gets cancelled, so I reach here. Limit change करेंगे 0 to pi by 4. Is it okay? Yes. Log of 1 plus tan theta. अब आगे सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी, जो दिमाग में कुछ भी चीज काम ना करे, ऑलवेज थिंक ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 6. इज इट ओके? Yes, sir. अच्छी बात है. सो लेट मी अप्लाई द प्रॉपर्टी. तो प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करेंगे? रिप्लेस x विथ a माइनस x. रिप्लेस x विथ a माइनस x. तो थीटा के बदले क्या लिखूं बताओ? व्हाट आई शुड राइट इन प्लेस ऑफ थीटा? Pi by 4 Pi minus by 4 theta. minus theta. हाँ. So I'll get, now I think everybody knows log of pi by 4 minus a का formula, tan of pi by 4 minus a. Yes, sir. 1 minus tan theta upon 1 plus tan. 1 plus tan theta. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. So when I take an LCM, what will I get? 1 upon 1 plus tan theta. 1 plus tan theta यहाँ पर आ जाएगा. 1 upon plus 1 plus tan theta plus 1 minus of tan theta, and नीचे I'll get 1 plus of tan theta. Is that true? Yes, sir. यहाँ पर d theta लिखना चाहिए.
Now your tan theta disappears. What is 1 plus 1 will become? 2. 2. So I get 0 to pi by 2. ऊपर आ गया 2, नीचे आएगा 1 plus tan theta. Is it okay? Yes, sir. Now log of a by b can be written as log of a minus of log of b. Is that true? Yes, sir. अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों किया आपने? चेक करो, इंटीग्रेशन को अंदर लेंगे, log 2 is a constant, it comes out. ये पाई बाय 4 है कि पाई बाय 2 है? वो pi by 4 है सर. पाई बाय 4 है ना, तो पाई बाय 4 लिख लेते हैं. ओके, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर आएगा 0 to pi by 4 log of 1 plus tan theta d theta. Yes, And sir. once you reach here, don't you see there is a punarjanam? Yes, Look at this. Who is this guy? I. Is this I? Yes, sir. So I'll write this as I. So this becomes I. So ये I है. This is also I. So I, this I will come here, will become 2I. चलेगा? Yes, sir. Yes sir. 1 का integration of theta from 0 to pi by 4. And then I'll put the upper limit minus the lower limit. Is it okay? Yes, sir. Yes So sir. 2I equal to pi by 4 log 2. So I became pi by 8 log 2. Is it okay? Yes, sir. So a big problem. So we should know this. Is it okay? Yes, sir. Yes अगर आप sir. ये पूरा प्रॉब्लम देखोगे, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था. x को tan थीटा कहां से, मोटिवेशन कहां से मिला? ऑफ कोर्स एक्सप्रेशन दिया है 1 plus x square, 1 plus x square, तो पुट x is tan थीटा. तो मैंने पुट किया एंड देन आई रीच्ड हियर. जब दिमाग में कुछ भी काम ना करे तो 0 to a वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना. और फिर जब मैंने इसको पूरा का पूरा ठीक से सिंप्लीफाई किया मैंने, और फिर यहाँ पर ये पुनर्जन्म हो जाता है. इज इट ओके किड्स? Yes, sir. चलो अच्छी बात है. अगेन ये भी 0 to a वाला ही प्रॉपर्टी है. आई थिंक मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं. 0 to pi x sin x cos square of x. जब दिमाग में कुछ भी काम ना करे, जब कुछ काम ही ना करे, तो आपके दिमाग में प्रॉपर्टी नंबर 5 नहीं 6 will always help you. Is it okay? तो कैन आई स्टार्ट? हाँ, sir. तो आप देखना यहाँ पर भी पुनर्जन्म ही होने वाला है. Again a पुनर्जन्म will happen. What? Replace x with what? Pi minus. Pi minus x. So replace x with pi minus x. Replace x with Pi pi minus. x. Is this okay? Yes, sir. So now see what happened, kids. This is pi minus x. What is sin pi minus theta? Sin theta. Sin theta. Now cos of pi minus theta is minus cos theta. Yes, sir. Minus cos theta ka square will become cos only, cos square theta. Is it okay? Yes, sir. Yes sir. Now take this guy inside. So it is 0 to pi. This will go inside. So I get pi times sin x cos square of x dx minus 0 to pi x sin x cos square of x dx. Is that true, kids? Yes, sir. Don't you think किसी का पुनर्जन्म हो चुका है? Yes, sir. तो ये आपका I हो गया. This becomes I. So that I goes there, becomes 2I. And once you reach here, now this problem should be done pretty easily because I can put something as t. What I should put something as t? Cos x as t. हाँ, क्योंकि डेरिवेटिव बाजू में है. So I'll put cos x as t और डेरिवेटिव बाजू में तो sin x dx will be equal to minus dt. Is it okay? Yes, sir. And then you can change your limit. I'm not doing it completely now. Cos of 0 is 1. Cos of pi will be minus 1. This becomes t square, dx, sin x dx. Yeah, sin x dx. And this becomes t square and sin x dx will become minus dt. Is it okay? Yes, sir. And आगे solve कर सकते तो मैं नहीं कर रहा हूँ. तो अगेन किस देखो ये प्रॉपर्टी कितना यूज होता है, इसलिए तो बोल रहा था ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इज इट ओके? Yes, sir. ओके किड्स, ये चैप्टर एक्चुअली आपका यहाँ पर ही खत्म हो जाता है एक्चुअली. बट मैंने और एक दो सम लिए हैं जो मॉडल्स वाले सम्स है, जो सॉल्व एग्जांपल्स में से मैंने लिए हैं, जो
मैं बता देता हूं आपको काम का है, मॉड वाले सम्स है. कैन आई स्टार्ट? Yes. ओके तो अभी ये यहाँ पर क्या होता है कि जब मॉड वाले सम्स ऐसे होता है ना, तो आपको एक काम को, आपको इंटरवल में ब्रेक करो उसको. मैं इसको इंटरवल में ब्रेक कर रहा हूं. मैं इसको इंटरवल में ब्रेक कर रहा हूं. जब मॉड वाले सम्स ऐसे होंगे तो इंटरवल में ब्रेक करना पड़ता है. क्यों करना पड़ता है यहाँ पर देखना. पहली बात तो यहाँ देखो कि सबसे पहले आपको रीजन बहुत सारे हैं, मैं आपको बोर्ड्स के लिए आपको बता देता हूँ क्या है. पहली बात, आई थिंक सबको मॉड का डेफिनेशन पता होगा. मॉड एक्स इज एक्स व्हेन एक्स इज Greater than. positive and mod x will be minus x when x is negative. Is that true? Yes, sir. Very nice. This can be extended to any function. Mod of f of x will be f of x when f of x is positive, and it will be minus f of x when f of x is negative. Negative. अब यहां देखो, ये क्या दिख रहा है, ये इंटरवल दिख रहा है, x का इंटरवल है. कहां से कहां जा रहा है? -1 से 0. हाँ के नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आप -1 से 0 के बीच में जाओगे, आप कोई भी एक वैल्यू ले लो, रैंडम वैल्यू. इफ यू पुट दिस गाय इनसाइड दिस, रफली ओरली चेक करने का, अगर आप कोई भी वैल्यू इसके बीच का जो भी वैल्यू का इसके अंदर पुट करोगे, इज इट बिकमिंग पॉजिटिव क्या नेगेटिव? Negative. Negative. So you take any value. Suppose you take -0.5. If I put -0.5, if I took -0.5, is it negative? Yes. And Yes, since sir. it is negative, I'll write minus of 5x minus 3. मॉड हट गया. So मॉड हटाने के लिए आपको पता करना पड़ता है. तो कैसे पता करने का? ये जो इंटरवल है x का कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले लो, इसके बीच का कोई भी एक वैल्यू ले लो, and put this inside this. If it is negative, to write a minus sign. If it is positive, write the positive sign. Is it okay? Yes. Yes, sir. Similarly, अब यहां पर भी आप देखना, बाय द वे, लेकिन यहां पर भी एक प्रॉब्लम है. 0 to 1 में यहां पर एक प्रॉब्लम आएगा. देखते हैं क्या प्रॉब्लम है. इसको एक्चुअली सॉल्व करने का ये तरीका नहीं है, मैं आपको और कुछ बता देता हूं मैं, क्योंकि इसका जो ब्रेकिंग पॉइंट कुछ और है. एक मिनट. तो इसको ब्रेक करने का तरीका होता है, ये एक्चुअली ऐसा मत करना आप लोग, मैं आपको बताता हूं क्या करना है. टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स, ऑफ कोर्स मैंने इंटरवल तो बता दिया, लेकिन एक काम करना, ये जो मॉड के अंदर जो टर्म है ना, इसको इक्वल टू 0 करो, तो आपको x का वैल्यू क्या मिल रहा है? 3/5. 3/5. तो आपका जो इंटरवल ब्रेकिंग जो होगा ना, वो होना चाहिए -1 से लेकर 3/5 एंड 3/5 से लेकर 1 तक. अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों है? क्योंकि आफ्टर 3/5 दिस बिकम्स पॉजिटिव. हाँ के नहीं? Yes, sir. Yes, sir. एंड बिलो 3/5 दिस बिकम्स नेगेटिव. हाँ के नहीं? Yes, sir. Yes, If you sir. understand, if you want to understand the thing, always equate mod वाला term जो है ना equal to 0, you will get that point and break the interval at that point only. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. After 3/5, it will be positive, and less than 3/5, it will be negative. Is it okay? Yes, sir. So if suppose if you come across any problem, I'm just thinking randomly, x -2, that should break where should I break it? At 2. 2. Yes, sir. If I give you 5x plus 7, where should I break it? -7/5. -7/5. If I give you 3x minus 2, where should I break it? 2/3. बोर्ड्स में इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं करना आपको. ओके चलो. एक्चुअली आपके बोर्ड एग्जाम ऐसे प्रॉब्लम्स कभी आते नहीं है, फिर मैं बता देता हूं क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में था. सॉल्व एग्जांपल में बता रहा हूं, ठीक है. सो नाउ इसके बीच में रहोगे तो ये नेगेटिव रहेगा. हाँ के नहीं? Yes. यहां पर आएगा माइनस ऑफ दिस, और इसके बीच में ये पॉजिटिव रहेगा. हाँ के नहीं? Yes, sir. बस अभी सॉल्व करना है. वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम नॉर्मली. हाउ टू सॉल्व दिस? आई कैन राइट दिस एज x²/2 minus 3x from -1 to 3/5. Is it okay? Yes, sir. It's also x²/2 plus 3x from 3/5 to 1. Is it okay? Yes. And then put the upper limit minus the lower limit. Yes. Is the mod wala sum ka method okay? Yes, sir. So equate that term to 0 and get that point and break at that interval. Is it okay? Yes, sir. चलो अच्छी बात है.
Okay, finally I'll just take the last sum for the day. तो ये आपका चैप्टर यहाँ खत्म हो जाएगा. स्टेप फंक्शन, आई थिंक सबको स्टेप फंक्शन याद होना चाहिए. स्टेप फंक्शन के बारे में आपको याद होना चाहिए किड्स. Let's recollect. Step of 1.7 is 1. 1, 1.8, 1. 1, 1.2, 1, 1.99. 1. But step of 2 is what? 2. So it gives you the greatest integer, right? Yes, sir. But it should be less than the number. How can equal to or less than the number? Is it okay? Yes. Arey, is it okay? Arey, is it okay? Yes, sir. Okay. और एक बात मैं आपको इसका ग्राफ भी बता देता हूं. इसका ग्राफ हमें याद होना चाहिए. It's like a step function. So how does it look like? 0 to 1, 2, 2 and 3. तो ये ऐसा आता है hollow circle. ये 1 ले लेता हूं, इसको 2 बोलता हूं, इसको 3 बोल देता हूं. तो ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, फिर ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा और फिर यहाँ पर ऐसे आएगा. Is it okay? It's like a step function. Is it okay, kids? Yes, sir. तो यहाँ पर क्या करना चाहिए kids? You should again break this into intervals only. Break this into intervals. 0 to 3 है ना, तो break this. जहां पर break होता है ना, वहां पर break करने का. 0 to 1. फिर 1 to 2. Break it at the जहां पर break हो रहा है. जहां पर function discontinuous है, वहां पर break करने का. Is it okay? Yes, sir. Okay. And now, just check it out. Last sum for the day. X into step of X. Again, such questions have not come in the board examination, but it's there in the textbooks. I'm just doing it. बोर्ड एग्जाम में नहीं, जेई में आता रहता है, लेकिन बोर्ड्स में नहीं है. अब आपको करना है क्या है किड्स? आपको इसका वैल्यू लिखना है बिटवीन 0 to 1. स्टेप एक्स का वैल्यू बिटवीन 0 to 1. यू टू राइट स्टेप एक्स का वैल्यू बिटवीन 0 to 1. इसका वैल्यू बिटवीन 0 to 1. इंटीग्रेशन अभी नहीं करना है, पहले इसका वैल्यू लिखना है बिटवीन 1 to 2. इसका वैल्यू लिखना है बिटवीन 2 to 3. तो कोई बताएगा 0 to 1 के बीच स्टेप एक्स का वैल्यू क्या होता है? 0 to 1 के बीच में 0. 0. वेरी गुड. तो ये तो सीधा 0 हो जाएगा. ये तो सीधा 0 हो गया. गुड. ओके, 1 to 2 में स्टेप एक्स का वैल्यू क्या है? 1 to 2 में 1. 1. वेरी गुड. नेक्स्ट 2 to 3 में स्टेप एक्स का वैल्यू क्या है? 2 to 3 में 2. पक्का ना? Yes, Yes, बस sir. वही करना है. तो पहले क्या करना है आपको? उसको ब्रेक करना है इंटरवल में, जहां जहां पर इंटीजर्स में ब्रेक करना है सीधा, और फिर स्टेप एक्स का वैल्यूज लिखने हैं आपको. तो 0 1 में स्टेप एक्स का वैल्यू 0 है, 1 to 2 में स्टेप एक्स का वैल्यू 1 है, एंड 2 to 3 में स्टेप एक्स वैल्यू 2. इज इट ओके किड्स? yes, Yes, sir. This is 0, and I think now to yaar anybody can solve this problem. Is it okay? yes, And of course we all know your x ka integration is x square X square by 2. from 1 to 2. This will also be x square by 2 from 2 to 3. Is it okay? yes, sir. And then the upper limit minus the lower limit. Is it okay? Yes, sir. So I hope kids हमने आज जो सम्स की आपको समझा, मैंने कैसे सिखाया आपको. Yes, sir. बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी 6 हम लोग यूज करते हैं, आपको शायद समझ ही गया होगा हमने कितना प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज किया है और बार बार यूज किया है. ओके, फिर हमने ऑड एंड इवन फंक्शन वाले प्रॉब्लम सॉल्व किए. ओके, और ज्यादातर जब 0 to a होता है तो हम लोग a माइनस एक्स ही करते रहते हैं. Yes, ओके, sir. और ये वाला रिजल्ट π/4 वाला रिजल्ट मैंने आपको बताया था, ये आप लोग भूलना मत. इसका आंसर हमेशा, एक मिनट, इसका आंसर हमेशा अपर माइनस लोअर बाय 2 ही होने वाला है. Yes, sir. फंक्शन दिस सिमिलरली यहां पर भी आपका आंसर हमेशा π/4 ही आता है. सही, सब चीजें जो हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री गाइस, दीज आर गाइस आर कॉम्प्लीमेंट्री. डू यू एग्री? Yes, sir. Okay. After that, of course, we did this problem, and remember the properties. The properties are of very much importance. Okay. उसके बाद ये सब basic sum solve किए हैं, and I hope you all have understood what I taught today. आपका बोर्ड्स में इतना ही था और कुछ नहीं था. Is it okay? Yes. sir. एक मिनट, या एक मिनट, या